Namaskar and a very warm welcome to all of you. On behalf of Sri Tara School of Wellbeing, I'm delighted to have you join us today for this special World Environment Day webinar dedicated to supporting parents and educators, the two most important caregivers in a child's life. My name is Surbhi Khurana and I've done my master's in psychology and I'm attached with Sri Tara since day one. Sri Tara is a mental health organization started in 2019 by Mrs. Shanti Bhava, a retired associate professor from Delhi University. At Sri Tara, we are a dedicated team of therapists, including counselors and psychologists, committed to improving mental health and emotional resilience across all age groups of people. We believe that creating a healthy emotional environment at home and in schools is just as essential as protecting the external environment. That's why today, on World Environment Day, we'd come together to explore the inner environment of the child and how parents and educators can collaborate to nurture it with care, balance, and empathy. It's equally important for parents and teachers' inner environment to be clear and calm to pass on the same clarity to their children. As a part of our ongoing mental health initiative, we also offer free weekly group sessions every Thursday from 4 to 4:40 p.m. Indian Standard Time on Zoom. This is open to all who want to seek guidance, connection, and emotional support. In today's session, we are honored to have Mrs. Sumita Sethia, our most experienced counselor, who will briefly guide us through the key insights on how to handle parenting challenges and common concerns faced by educators. After our talk, we will open the floor for a Q&A session. So please feel free to note your thoughts or questions as we go along, and you can put them in the chat or WhatsApp us on Sritara's helpline number, which I'll also post in the comments and in the chat. So let's begin this journey of mindful parenting and compassionate teaching together. Thank you once again for being here. Over to Sumita ma'am. थैंक यू सुरभि। नमस्कार सभी को। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, आज इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे है। हम सभी आने वाली जनरेशन को बेटर एनवायरनमेंट ही देना चाहते हैं, और यहाँ मैं बात कर रही हूँ अपने बच्चों या स्टूडेंट्स के इनर एनवायरनमेंट की। और मैं समझती हूँ कि इसमें हम टीचर्स और पेरेंट्स की बराबर की जिम्मेदारी है। जिस दिन दो लोग मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें एक नए जीवन को इस दुनिया में लाना है, तो वो एक तरह से 18 साल का प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेते हैं। बच्चे को बड़ा करने का प्रोजेक्ट एक पौधे को बड़े करने जैसा है। पौधे को बड़ा करने के लिए हम उसे सींचते हैं, नर्चर करते हैं, उसकी मिट्टी पर काम करते हैं, उसको हवा, पानी और रोशनी प्रोवाइड करते हैं। तभी वो पौधा ग्रो करता है, फलता है, फूलता है, फ्लरिश करता है। आज मैं बात करूंगी कि पेरेंट्स और टीचर्स किस डायरेक्शन में क्या एफर्ट्स कर सकते हैं कि बच्चा अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच सके, वो प्रॉपर ग्रो कर सके। देखिए, बच्चे का ब्रेन सही पेस में प्रॉपर डेवलप हो, इसके लिए उसकी कुछ नीड्स होती हैं, जैसे कि वो ठीक से सो सके, उसे हेल्दी फूड मिले और उसको मजे का, खुशी का एहसास बना रहे, तो ही उसका ब्रेन प्रॉपर डेवलप हो पाएगा। अब ये जो खुशी और मजे के माहौल की बात है, उस माहौल की जिम्मेदारी पेरेंट्स की तो है ही, और क्योंकि सीखने की उम्र में बच्चा बहुत समय स्कूल में रहता है, तो टीचर्स की भी जिम्मेदारी बनती ही है। तो हम बात कर रहे थे बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ की। इसके लिए सबसे जरूरी जो बात है वो ये कि बच्चे को ऐसा माहौल मिले जिसमें वो अपनी हर बात अपने पेरेंट्स से बिना डरे शेयर कर सके, अपनी बात को एक्सप्रेस कर सके। इसके लिए पेरेंट्स को हमेशा एक बात ध्यान रखनी होगी कि अपने बच्चों से ज्यादा बातें करें। अब जब हम बच्चों से बात करें तो ये भी ध्यान रहे कि बच्चों की हर बात सुनना तो इम्पोर्टेंट है ही, उनकी हर बात का प्रॉपर जवाब देना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और पेरेंट्स अननोइंगली ही सही क्या करते हैं, कई बार या तो बच्चे की बात ध्यान से सुनते नहीं, और सुन भी लेते हैं तो उसे प्रॉपर जवाब नहीं देते। इसका मैं अपने जीवन से एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। करवा चौथ से एक दिन पहले मेरी डॉटर शाम को 5 बजे के बाद रोने लगी
कि मुझे पीछे हटो लगवानी है, मुझे पीछे हटो लगवानी है। और घर के जितने लोग थे सबने बहुत ट्राई किया कि उसको चुप कराएं, चुप कराएं, बेटा रोते नहीं है, ऐसे मत करो। तो समझ ही नहीं आया कि पीछे हटो लगवानी है। फिर रात को मुझे मतलब 2-3 घंटे जब उसने रो लिया तो मुझे ध्यान आया कि मैं मेहंदी लगवाने गई थी, वो मेरे साथ थी। उसकी एज थी उस टाइम 2-2.5 साल। तो वो मेरे पीछे खड़ी थी और मैं मेहंदी लगवा रही थी। तो वो मुझसे पूछती थी कि मम्मी ये क्या है। तो मैं उसको वो मेरा हाथ हिल जाता था, मेहंदी खराब हो जाती थी। तो मैं उसको कहती थी पीछे हटो। तो उसका क्वेश्चन था ये क्या है और मेरा आंसर था पीछे हटो। तो उस बच्चे को लगा कि ये जो मम्मी हाथ में लगवा रही है वो पीछे हटो है। तो वो इसलिए रो रही थी कि पीछे हटो लगवानी है। एक्चुअली बच्चे क्यूरियस होते हैं, हर बात जानना चाहते हैं, और इसके लिए वो अपने पेरेंट्स की तरफ ही देखते हैं। और क्योंकि बच्चे एक स्पॉन्ज की तरह होते हैं, पेरेंट्स के जवाबों को ही वो एब्जॉर्व करते हैं, सीखते हैं। और क्योंकि दोनों पेरेंट्स में से बचपन में ज्यादातर बच्चे मदर के साथ ज्यादा टाइम रहते हैं, तो लड़के इसीलिए ममाज बॉय कहलाते हैं क्योंकि माँ से सीखते हैं, और लड़कियों को सुनना पड़ता है कि माँ सिखाती है। मुझे पता है कि यहाँ जो लोग आए हैं किसी ना किसी रिलेशन में, चाहे खुद ये बात उन्होंने ना भी की हो, पर सुनी जरूर होगी। अ, और आपने नहीं तो किसी और, अपने नहीं तो किसी और के कॉन्टेक्स्ट में वो मेरी इस बात से रिलेट कर रहे होंगे। तो आज जब हमने पेरेंट्स बनना चूज किया है, तो जो भी अपने बच्चों को हम सिखाना चाहते हैं तभी सिखा पाएंगे जब हम अपने बच्चों की बात को ध्यान से सुनेंगे और उनको प्रॉपर जवाब देंगे। तो पेरेंट्स की एक कोशिश रहनी चाहिए कि बाकी जरूरी कामों की तरह अपने डे टू डे के रूटीन में बच्चों से बातें करने के लिए टाइम निकाले, और बच्चे जो भी पूछें, जो भी बताएं, उनकी हर बात सुने और उसे प्रॉपर जवाब दें। ये थी पहली बात। पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के मामले में दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जैसे ही बच्चा रिस्पॉन्ड करना लगता है ना, या एक्टिविटी शुरू करता है, तो बच्चा अगर कुछ भी ऐसा करता है या ऐसा बोलता है जो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, हम उसकी किसी भी बात पर, किसी भी एक्शन रिएक्शन पर अक्सर कह देते हैं बेटा ये गंदी बात है, ऐसे नहीं बोलते। जैसे बच्चे अपने किसी दोस्त के लिए, किसी टीचर के लिए या किसी बड़े के लिए कह देते हैं कि ये तो पागल है, ये तो गंदा है, या कोई और भी एब्यूसिव वर्ड जो हम नहीं चाहते कि बच्चा किसी और के लिए यूज करे। तो अब ये कहने की बजाय कि ये गंदी बात है या ऐसे नहीं बोलते, आपको उससे पूछना है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। जिसे तुम गंदा कह रहे हो उसने तुम्हारे साथ या किसी और के साथ, या तुमने कोई देखा है, तो ऐसा तुम क्यों कह रहे हो उसको, क्या ऐसा देख लिया तुमने उसमें। हो सकता है बच्चा कहे मैंने तो यूं ही कह दिया। नहीं, ये जवाब आपको एक्सेप्ट नहीं करना। ये बात आपको खुद भी समझनी है कि जब आपको भी किसी से दिक्कत होती है तभी तो आप किसी के बारे में ऐसा कुछ बोलते हैं ना। और कभी आप किसी को अच्छा बताते हैं, तारीफ करते हैं, तो उसके बिहेवियर में, एक्शन में आपको कुछ ऐसा दिखता है। पर जब तुम उनको बार बार ये कहते हो ना कि ये नहीं कहते, वो नहीं कहते, ये गंदी बात है, तो वो आपसे कुछ भी शेयर करना बंद कर देता है। क्योंकि अपने आप ही वो एज्यूम करने लगता है कि अगर ये बात बताऊंगा तो डांट पड़ेगी, गुस्सा करेंगे, गंदी बात बोलेंगे। बच्चे नादान होते हैं, वो नहीं समझ पाते कि कौन सी बात बताने की है और कौन सी बात ऐसी है जो ना भी बताई तो कोई बात नहीं। जब आपसे आपके बच्चे अपने मन की बात शेयर ही नहीं करेंगे, तो आप जान ही नहीं पाएंगे कि आपके बच्चे के मन में क्या चल रहा है। तो उसे सिखा कैसे पाएंगे जो भी आप उसे सिखाना चाहते हैं। और यही बात आपके पेरेंटिंग के प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा हर्डल है। मेन बात ये है कि वो अगर कुछ भी ऐसा कह रहा है जो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उसके शब्दों को ना पकड़कर उसके पीछे की बात को पकड़ें। हमारे लिए उसके व्यवहार को, बिहेवियर को या लैंग्वेज को सुधारने से ज्यादा जरूरी है कि उसे कोई तकलीफ ना हो। और अगर तकलीफ है तो वो अपनी हर तकलीफ हमें, हर दिक्कत बता पाए। हम अपने एफर्ट्स, अपनी एनर्जी उसके बिहेवियर और लैंग्वेज को सुधारने में खर्च कर देते हैं, जबकि इम्पोर्टेंट हमारा ये जानना है कि हमारे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो, और हो तो हमें उसका पता हो। और ऐसा कहकर ना बार बार हम उसे कंफ्यूज भी करते हैं। जैसे हम बच्चों को पंचतंत्र की कहानियां सुनाते हैं, उन्हें संस्कारी बनाना चाहते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि सदा सच बोलो, लेकिन जैसे ही किसी बच्चे ने कहा कि मासी, चाचा, बुआ या दादा दादी कोई भी गंदी है,
तो हम उन्हें कहते हैं नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते, गंदी बात, बड़ों की इज्जत किया करो। अब वो अपने मन की सच्ची बात कह रहे हैं तो हमारी इज्जत खराब हो रही है। यहाँ मुझे एक इंटरेस्टिंग सा वाकया याद आ गया कि मेरी एक क्लोज फ्रेंड है, तो उसका कहना है कि मेरी बेटी बहुत इंट्रोवर्ट है। जब मैं अपनी बेटी को कहती हूँ कि तुमसे ज्यादा तो तुम्हारी फ्रेंड मुझसे बात करती है, तो वो गुस्सा हो गई कि आपने ही तो मुझे ऐसा बनाया है। जब मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि क्या उसे भी ऐसा लगता है कि उसकी बेटी सही कह रही है, उसका कहना था कि हाँ बिल्कुल मैं ही जिम्मेदार हूँ। क्योंकि उसने कहा कि जब छोटी थी, मेरी बेटी छोटी थी, तब से बड़ी होने तक हम लोग फैमिली मेंबर्स बैठ के गेम्स खेलते थे। तो इसकी जो दादी थी, तो उसको इसने एक दिन कहा, पहली बार जब मैंने इसको ऐसा कहा कि उसने बोला दादी चीटिंग करती है, तो मैंने उसको बिल्कुल छुप के कि किसी को पता भी ना चले चुंडी मारी, मतलब उसको पिंच किया, ऐसा नहीं बोलते। और बाद में उसको मैंने काफी डांटा भी सही। तो ऐसी बहुत सारे ऐसी सिचुएशंस आई जब मैंने उसको ये सिखाया कि ये गंदी बात है, ऐसा नहीं कहते। तो वही है कि वो कुछ भी शेयर करना उसने बंद कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर किया क्या जाए, अपने बच्चे को हम बदतमीज बनने दें। अब मैं इसी बात पर आ रही हूँ। देखिए, हम पेरेंट्स और टीचर्स को ये समझना होगा कि बच्चा कुछ भी ऐसा बोल रहा है जो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, तो बच्चे को क्वेश्चन करना है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। इससे क्या होगा ना, उसे आदत पड़ेगी कि मैं सेम बात को दोबारा बोलूंगा या करूंगा तो मुझसे पूछा जाएगा। वो रुकना सीखेगा, वो सोचना सीखेगा। हो सकता है वो ऐसे ही बिना वजह कह रहा हो किसी को देख के, तो उसे पता होगा कि मुझसे पूछा जाएगा तो मुझे कारण पता होना चाहिए, और वो अपने कहने की जिम्मेदारी लेना सीखेगा। हमें अपने बच्चों को अपने साथ बातें करके इतना कंफर्टेबल करना है कि हमें पता हो कि बच्चा किस डायरेक्शन में सोच रहा है, ताकि हम उसे गाइड कर सकें। देखिए, आए दिन जो हम चाइल्ड अब्यूज की या सुसाइड की खबरें सुनते हैं, इसका रीजन यही है कि बच्चे अपने मन की बात जब अपने पेरेंट्स से ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर उनके साथ क्या चल रहा है और उनके मन में क्या चल रहा है वो किसको बताएंगे, किससे बात करेंगे। और इससे क्या होगा, वो खुद को सप्रेस करना सीखेंगे, जो उनकी मेंटल हेल्थ के लिए डैमेजिंग है। एक और बात जो बच्चों में स्ट्रेस का कारण बन सकती है, वो ये कि बच्चे बड़े होकर क्या करेंगे, कौन सा करियर चूज करेंगे। असल में इस तरह की समझ पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जा रही है कि बच्चों को ये बनाना है वो बनाना है, बच्चों को लाइफ में इतना तो करना ही चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, चलो इतना नहीं तो इतना तो करना चाहिए। इस समझ की वजह से पेरेंट्स पर प्रेशर होता है, और वो प्रेशर जाने अनजाने बच्चों में ट्रांसफर होता ही है। और कई बार कुछ पेरेंट्स नहीं भी प्रेशराइज करते, पर फैमिली में कोई और या फिर सोशल मीडिया पर मूवीज में बच्चे देखते हैं तो खुद ही प्रेशर लेने लगते हैं। तो देखिए, यहाँ पेरेंट्स और टीचर्स के लिए समझने वाली बात यह है कि हर बच्चा कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही सकता है। हम सब एक सेंस में एक दूसरे से अलग हैं। जैसे कि हम सब अलग दिखते हैं, अलग सोचते हैं, ऐसे ही सब में अलग अलग स्किल्स हैं। और नेचर को अलग अलग तरह के लोग चाहिए। में नेचर की ब्यूटी छिपी है। और नेचर की डिमांड है कि सब में अलग अलग स्किल्स डेवलप हो, कोई अच्छा सिंगर बने, कोई अच्छा डॉक्टर, तो कोई अच्छा इंजीनियर बने, कोई अच्छा फिल्म मेकर, और कोई अच्छा बिजनेसमैन। तो इन सबको बातों को समझने की जरूरत है, क्योंकि बच्चों की मेंटल हेल्थ की जिम्मेदारी भी तो हम टीचर्स और पेरेंट्स की ही है। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ। अब आगे की बात करेंगी सुरभि, हमारी टीम की साइकोलॉजिस्ट। पिछले वेबिनार में कुछ प्रश्न आए थे जिनका उत्तर देंगी श्रीतारा की फाउंडर और रिलेशनशिप एक्सपर्ट मिसेस शांति पाहवा। ओवर टू सुरभि। थैंक यू। हाँ, तो फर्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें आया वो है, हमारे बच्चों को पता होता है कि फिजिकली हर्ट हो जाए तो कब बैंडेड लगाएं, कब बीटाडीन लगा लें, या फीवर हो जाए तो पैरासीटामोल खा लें। वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हेडेक है तो क्या मेडिसिन खानी है, ये सब भी वो समझ जाते हैं। पर रिजेक्शन से कैसे डील करें, या जब उन्हें गुस्सा आए, रोना आए, या बेसिकली जब वो इमोशनली हर्ट हो तो उसे कैसे हैंडल करें, वो नहीं जानते। ऐसे में पेरेंट्स और एजुकेटर्स उनको क्या हेल्प कर सकते हैं? हाँ सुरभि, देखो, जो चीज बचपन से लेकर जीवन के अंत तक आपको ट्रबल देने ही वाली है, उसके लिए क्या करना है, ना तो वो बात माँ बाप को पता होती है ना बच्चों को पता होती है। इसलिए हर घर में
फिजिकल इलनेस के लिए तो फर्स्ट एड बॉक्स होता है, लेकिन इमोशनल इलनेस के लिए कोई फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है। जो कुछ माँ बाप के साथ भी हुआ और माँ बाप के साथ भी हुआ और बच्चों के साथ भी होना ही है, पर उसके लिए क्या करना है किसी को भी पता नहीं है। बचपन से लेकर जब तक इंसान बड़ा होता है, मतलब समझ लो 5-6 साल का बच्चा है, और फिर बुढ़ापे तक हर इंसान बार बार इमोशनली हर्ट होता है। उसे चोटें लगती रहती हैं, हार्ट ब्रेक्स होते रहते हैं। वो कॉन्स्टेंटली फील करता है कि उसे रिजेक्ट किया गया है। कितनी बार उसे फेल्यूर्स मिलते हैं, कहीं ना कहीं वो गिल्टी फील करता रहता है, कहीं ना कहीं वो लॉस भी फेस करता है। यानी इमोशनल लेवल पर उसके जीवन में बहुत कुछ चलता रहता है, पर उसे नहीं पता होता कि करना क्या है। उसके लिए कोई मेडिसिन, कोई टूल, कोई स्ट्रेटेजी कुछ भी नहीं है। किसी को कोई आइडिया ही नहीं है कि इमोशंस को कैसे डील किया जाए। हालांकि अब काफी अवेयरनेस हो भी रही है। लोग सोचते हैं, पूछते हैं, इंटरनेट पर ढूंढते हैं कि ऐसे में क्या करना चाहिए। और आज अब बहुत सारे लोगों को पता भी लगता जा रहा है कि क्या करना है। और उनमें से कुछ लोग थेरेपिस्ट के पास या काउंसलर्स के पास जा भी रहे हैं, जाने भी लगे हैं। लेकिन काफी लोग पता होने के बावजूद कुछ नहीं करते, या कहें कि कर नहीं पाते। इसके लिए आप अपने बच्चों को बताएं कि वो अपने इमोशंस को सप्रेस ना करें, उन्हें एक्सप्रेस करें, किसी से भी बात करें। देखिए, घरों में हम सभी लोग एक दूसरे को हर्ट होते रहते हैं, करते भी रहते हैं, होते भी रहते हैं। काफी बार मदर्स हर्ट होती ही हैं, तो वो अपना रोना छुपाती हैं, खासकर अपने बच्चों से। उनको लगता है कि बच्चा छोटा है, तो ये मेरे बच्चे को ना मैं बताऊंगी कुछ तो दुख होगा, या मुझे रोते हुए देखेगा तो दुख होगा। और तुम्हें पता ही नहीं लगता कब वो बच्चे भी यही करने लगते हैं, वो अपना रोना छुपाने लगते हैं। तो उनसे अपने इमोशंस छिपाने की जरूरत नहीं है, उनसे बात करें। इससे वो भी बात करना सीखेंगे और बातों को सुनना भी सीखेंगे। तो जो तुम करते हो ना, बच्चे वो सीखते हैं। जो तुम कहते हो वो नहीं सीखते, जो तुम करते हो वो सीखते हैं। बच्चे ये बात कहने से नहीं सीखेंगे कि तुम अपने इमोशंस को छिपाओ मत, बल्कि अगर तुम अपने इमोशंस को नहीं छिपाओगे तो वो भी नहीं छिपाना सीख जाएंगे। देखिए, अगर इमोशंस को सप्रेस करोगे तो कहीं ना कहीं शरीर में कोई ना कोई नुकसान तो होगा ही। पहले तो ये बात पेरेंट्स को पता होनी चाहिए, फिर यही बात पेरेंट्स के कहने में और यही बात उनके करने में भी होनी चाहिए। यानी तुम्हारी कथनी और करनी में फर्क ना हो। तो इमोशनल फर्स्ट एड किट में सबसे पहले आपको दबाने की, छुपाने की जरूरत नहीं है। उन्हें बताएं कि जैसे हंसना एक इमोशन है, वैसे ही रोना एक इमोशन है, वैसे ही गुस्सा भी एक इमोशन। उन्हें बताएं कि वो जैसा फील कर रहे हैं अपने आप को फील होने, यानी रोने का मन है तो रो ही लें। उन्हें ना कहें कि नहीं नहीं, रोना नहीं होता, रोते तो गंदे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे तो सदा मुस्कुराते रहते हैं। या फिर कुछ पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि रोते तो कमजोर बच्चे हैं, तुम तो स्ट्रांग हो। देखिए, अगर आपने उनकी कोई बात नहीं मानी तो उन्हें दुख तो होगा ही। बच्चे लगातार टीवी देखना चाहते हैं, जिसके लिए पेरेंट्स को मना करना ही होता है। और इस मना करने से बच्चे अपसेट होते ही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें टीवी अनलिमिटेड टाइम तक देखने ही दें, लेकिन मना करने पर अगर उन्हें बुरा लग रहा है और उनका रोना निकल आया है तो उन्हें रोने के लिए ना डांटें। उन्हें रो ही लेने दें, उन्हें डिस्ट्रैक्ट भी ना करें। यानी उन्हें बहलाने फुसलाने की भी जरूरत नहीं है। बस रुकें कुछ देर, आप देखोगे कि वो थोड़ी देर में खुद ही नॉर्मल हो जाएगा। अब अगला प्रश्न पढ़ें सुरभि। हाँ जी। As a parent, I feel very sad and lost. How to handle my emotions when I myself am feeling traumatized? हाँ, जैसे मैंने पहले भी कहा है ना कि अपने इमोशंस को, अपने दुख को ना दबाओ, ना छुपाओ। अपने दुख को, अपने ट्रामा को कम करने के लिए आपको कुछ नहीं करना। बस जो भी दुख आपको हो रहा है ना, उसे हो लेने दें। अपने दिमाग को दुख में रहने दें, उसे डिस्ट्रैक्ट मत करें। बैठो अपने दुख के साथ, बिना कुछ किए तुम कुछ वक्त तक उसे फील हो लेने दो। ये मत कहो कि नहीं नहीं, ऐसे तो मुझे कोई बात नहीं है, मुझे इतना दुख पता नहीं क्यों हो रहा है। Hmm. तुम अपने दुख के साथ, अपनी सिचुएशन के साथ जितना रहोगे, उतनी जल्दी उस दुख से बाहर आ जाओगे। एक थ्योरी है पेन पैराडॉक्स। उसमें इंसान को अगर कोई एडवर्स सिचुएशन आती है ना, तो उसे कुछ करना होता है। इंसान को लगता है कि अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं कुछ करता हूं ताकि मुझे अच्छा लगे। तो ये चीज पेन को प्रोलॉन्ग ही करती है। अगर मैं खुद को वो फील करने का टाइम ही नहीं देती जो मुझे फील होना चाहिए, तो दिमाग खराब होगा ही। ज्यादातर लोग जब भी किसी क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं तो यही करते हैं कि वो अपने आप को उस सिचुएशन से डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। दोस्तों के साथ कहीं घूमने चले जाते हैं, कहीं शॉपिंग करने चले जाते हैं, खुद को टीवी में या यूट्यूब में लगाने की कोशिश करते हैं।
यानी उस जगह से, उस सिचुएशन से भागते हैं। पर उनकी ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करती। सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी का वर्क करती है, वो ये कि यू फील द फीलिंग्स यू आर गोइंग थ्रू। तुम खुद को अलाउ करो कि जो फील हो रहा है उसे हो लेने दो। रोने का मन हो रहा है तो रो ही लो, चिल्लाने का मन हो रहा है तो चिल्ला ही लो। इसीलिए तो स्क्रीम थेरेपी इतनी पॉपुलर होती जा रही है। एक इंटरव्यू में ऋचा अनिरुद्ध, जो कि एक न्यूज एंकर रही हैं, और जिंदगी विद ऋचा नाम से उनका शो भी चलता है, उनसे किसी ने पूछा कि क्या आपको भी दुख होता है, क्या आप भी कभी रोती हैं? तो ऋचा का कहना था कि हाँ, मैं भी रोती हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मुझे ऑडियंस के सामने जाना होता है और उनसे कुछ ऐसा कहना होता है जिससे वो मोटिवेट हों, तो मुझे अपने रोने को कुछ वक्त के लिए रोकना पड़ जाता है। लेकिन जैसे ही फिर मैं अकेली होती हूँ तो फिर मैं रो लेती हूँ। और कभी कभी अकेले गाड़ी में बैठकर किसी जगह पर गाड़ी रोककर चिल्ला भी लेती हूँ और उससे आराम महसूस करती हूँ। ऐसे ही आमिर खान का भी एक इंटरव्यू में कहना था कि वो दिन में कई बार रो लेते हैं। असल में जब तक तुम्हारा मन अपना दुख मना ही नहीं लेता, तब तक वो उस दुख से बाहर आ नहीं सकता। और पूरा मनाने के बाद ये हो नहीं सकता कि तुम्हारा मन दुख से बाहर ना निकले, क्योंकि सदा दुख में रहना हमारा स्वभाव नहीं है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। हाँ सुरभि। हाँ जी। तीसरा क्वेश्चन है कि मैं कैसे डिसाइड करूं कब मुझे प्रोफेशनल हेल्प या थेरेपी चाहिए। देखो, आपका दुख कोई और नहीं नाप सकता, उसे तो केवल आप खुद ही देख सकते हैं। हाँ, अगर आप खुद जांच करना चाहें तो आप देखें कि जो भी आप करना चाहते हैं, क्या आप कर पाते हैं। यानी आप कभी मस्ती करना चाहें तो मस्ती कर पाएं, गाना गाने का मन हो तो गा पाएं, नाचना चाहें तो नाच पाएं, आपको कोई हेजिटेशन ना हो। और ना नाचना चाहें तो अपने ना नाचने के साथ भी आप कंफर्टेबल हो। या जो आप किसी को कहना चाहते हैं वो कह पाते हैं, और जो आप दूसरे लोग आपको कहते हैं क्या वो आप सुन पाते हैं। आप जैसे रहना चाहें रह पाएं तो ठीक है, आपको किसी के पास जाने की, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन आप मेरे पास आए और कहें कि हाँ ठीक है, मैं जो भी कर पाती हूँ या नहीं कर पाती तो भी मैं उन्हीं की उसी के साथ कंफर्टेबल हूँ, तो मेरे पास या किसी के पास भी ये जान लेने का कोई तरीका नहीं है जिससे ये पता चले कि आप ठीक हैं या नहीं है। अगर आप मेरे पास आए और कहें कि मुझे तो दुख नहीं होता, ना ही लाइफ में मुझे कोई कंफ्यूजन है, तो मेरे पास या किसी के पास भी कोई तरीका नहीं है कि वो आपकी मेंटल हेल्थ को जज कर सके। लोग डिनायल में रहते हैं, लोग मास्क मास्क पहने रहते हैं, किसी को पता ही नहीं चल सकता कि कौन कब कितने क्राइसिस से गुजर रहा है। लोग किसी को भी नहीं बताते क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर बता देंगे तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। या वो सोचते हैं कि अगर लोगों को पता चल गया कि हम दुखी हैं तो लोग हमसे मिलना ही छोड़ देंगे। असल में हमें अपने इमोशंस को रेगुलेट करना आता ही नहीं है, क्योंकि जो भी गुस्सा करता है या इरिटेट होता है या दुखी होकर उदास रहने लगता है, उसके पास उसके रीजंस होते हैं, और उनको जीवन में जीने का यही तरीका आता है। उनके पास और कोई तरीका है ही नहीं, और वो इसे भी सब नॉर्मल वे ऑफ लाइफ देखने लगते हैं। इसलिए हमें ये सोचना बंद करना होगा कि अपने इमोशंस को रेगुलेट करना तभी सीखेंगे जब कोई ऐसी मुश्किल खड़ी हो जाएगी या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जिससे निकलना हमारे लिए करीब करीब असंभव हो जाएगा, तब सीख लेंगे। असल में तो तुम्हें ये सब पहले से सीखने की ह्यूमन नीड है। ये बहुत बड़ी गड़बड़ है कि हम ना तो खुद ये सब सीखते हैं, ना ही अपने बच्चों को ये सब सिखाते हैं कि कैसे इमोशंस को डील डील किया जाए। ये कोई ऐसे टूल्स नहीं है जो सिर्फ उन्हीं लोगों को सीखने हैं जो जीवन में किसी क्राइसिस से गुजर रहे हैं। ये तो ऐसे बेसिक टूल्स हैं जो प्रत्येक इंसान की जरूरत है, और इसलिए हम इमोशनल लिटरेसी का प्रोग्राम भी चलाते हैं। हालांकि आज से 20 साल पहले तक मैं इधर उधर अपने माइंडसेट के ग्रोथ के लिए काम तो बहुत कर रही थी, लेकिन थेरेपिस्ट के पास मैं तभी गई थी जब मेरा जीवन ही रुक सा गया था। और फिर जब मैंने ये काम किया तो मैंने ये बात महसूस की कि ये सब तो हम सभी को पहले से पता होना चाहिए था। और फिर मैंने अपने ही भाई को, बहन को, अपनी बेटी को और अपनी क्लोज फ्रेंड्स को बताना शुरू किया, और उन्होंने बहुत रेजिस्ट भी किया। उनका कहना था कि ठीक है, आपको जरूरत थी, आपने किया, पर हमें जरूरत नहीं है। लेकिन एक तो वो लोग मेरी लाइफ को देख रहे थे, दूसरा मेरा उनको कंसिस्टेंटली कहना और उनकी समस्याओं के उनको क्लैरिटी से जवाब मिलने से उन्हें भी इसमें मजा आने लगा, और उन्होंने भी इस इमोशनल लिटरेसी के प्रोग्राम को किया। अब अगले प्रश्न पर आते हैं सुरभि। हाँ जी। किसी ने भेजा है कि मुझे लगता है काफी बार कि मेरे पार्टनर या किसी क्लोज फ्रेंड और रिलेटिव को थेरेपी चाहिए, पर ये बात मैं उन्हें कैसे बोलूं या कैसे उन्हें थेरेपिस्ट के पास भेजूं।
देखो, वैसे तो अपनी हेल्थ के लिए, वो चाहे फिजिकल हेल्थ हो या हो मेंटल हेल्थ, प्रत्येक इंडिविजुअल खुद जिम्मेदार है। लेकिन फिर भी अगर हमारा कोई अपना या हमारा पार्टनर तकलीफ में होता है तो नेचुरली हम कंसर्न तो फील करते ही हैं। तब अगर हम खुद मेंटली हेल्दी हैं तो हम उसे कह सकते हैं, सिंपली सजेस्ट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसके साथ भी जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद अपनी समस्याएं तो उसे ही स्वीकार करनी होंगी, बात उसे खुद ही करनी होगी। उसे क्या समस्याएं ये उसे ही बताना होगा, काम भी उसे ही करना होगा। बस हम उसे आराम आराम से कह सकते हैं, वो मान भी सकता है, वो नहीं भी मान सकता। और वो कब मानेगा इसका भी पता नहीं लग सकता। हाँ, हम अगर खुद मेंटली हेल्दी हैं तो हो सकता है उसे हमारी मेंटल फिटनेस में दिख जाए कि वो मेंटली उतना फिट नहीं है, और वो मान जाए चलने को। किया तो यही जा सकता है, मैंने भी यही किया था अपने अपनों के लिए। कुछ अपनों ने माना और कुछ अपनों ने नहीं भी माना। आप भी यही कर सकते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैसे मैं चूज करूं राइट थेरेपिस्ट, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट अपने लिए और या फिर अपने बच्चे के लिए भी। देखो सुरभि, इसके लिए एफर्ट्स तो उसी को करने होते हैं जो प्रॉब्लम में होता है। इंटरनेट के आ जाने से ये काम ज्यादा मुश्किल रहा नहीं है। फिर भी पहले तो ढूंढना होगा कोई थेरेपिस्ट, फिर जा जाकर देखना भी होगा। वो एक पिक्चर थी ना, डियर जिंदगी, शाहरुख खान और आलिया भट्ट की। उसमें शाहरुख खान कुर्सी का एग्जाम्पल देते हैं कि आपको एक कुर्सी भी खरीदनी होती है तो आप किसी भी शोरूम पर जाकर पहली बार जिस कुर्सी पर बैठ जाते हैं, जरूरी नहीं कि आप उसी को खरीद लें। आप आराम से ट्राई करते हैं, दो चार जगह पर जाकर देखते हैं, फिर जहां आपको ठीक लगता है आप वहां से कुर्सी खरीदते हैं। ऐसे ही जब बात आपके जीवन की है तो आपको ही केयरफुली डिसाइड करना होगा। बात है पहले एक्सेप्ट करने की, उसके बाद अपने सवाल पूछने की, और उसके बाद बताए गए तरीके से काम करने की। यानी आपकी इमोशनल हेल्थ छिपी है इन तीन शब्दों में: एक्सेप्ट, आस्क एंड वर्क। खैर, इमोशनल लिटरेसी के बारे में बताने को बहुत कुछ है जो कि इतने कम समय में बताया ही नहीं जा सकता। इसलिए जानती हूं आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे ही, जिन्हें आप हमें व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। आपके पास हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं ही। तो अब आप अगला प्रश्न पढ़ेंगे सुरभि। हाँ जी। क्वेश्चन जो आया है वो है कि मेरा बेटा अक्सर बोल देता है कि नानू गंदे हैं अगर उसके नानू उसकी पसंद की चीज नहीं लेके देते उसको। तब मैं उसको कैसे हैंडल करूं? मेरे लिए ये बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता है। हाँ सुरभि, ऐसा करते हैं बच्चे। तो उस वक्त उसकी इस बात पर ना तो आप हंसें, ना ही उसे डांटने की जरूरत है, और ना ही आपको एम्बेरस फील करने की जरूरत है। उस वक्त जैसा कि सुमिता ने भी कहा, उससे पूछें कि वो ऐसा कह क्यों रहा है। वो बताएगा कि नानू मुझे ये चीज नहीं दिला रहे थे। तब उसे उस चीज का ना दिलाने का जेन्युइन कारण बताएं, जैसे कि चीज इसलिए नहीं दिलवाई जा रही थी क्योंकि ये तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, या फिर ये हमारे बजट में नहीं है, या जो भी तुम्हारे कारण है। लेकिन पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा अभी छोटा है, समझेगा नहीं। जब आप उन्हें अपनी बात विद रीजंस कहेंगी, फॉर्मली कहेंगी, तो काफी चांसेस हैं कि वो समझेंगे बच्चे। और किसी भी बच्चे के लिए बात समझने की कोई उम्र निर्धारित तो होती नहीं है कि ये बच्चा ये बात 4 साल में समझेगा या 5 में समझेगा। जब बच्चा मांगना सीख गया, गंदा कहना सीख गया, तो आपकी बात को भी समझेगा ही। और आज नहीं तो कल या 6 महीने बाद समझ लेगा। लेकिन आप जेन्युइन बात ही कहें, उसके दो फायदे होंगे। पहली बात तो यह है कि तुम्हें अपनी बात को कभी भी बदलना नहीं पड़ेगा। हर वक्त हर उम्र में वही बात कही जाएगी। दूसरी बात, बच्चे का विचार फॉर्म हो गया कि कुछ चीजें हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं और कुछ चीजें खराब होती हैं, और कुछ चीजें हमारे बजट में आती हैं और कुछ नहीं भी आती हैं। सुरभि, एक बार तुम्हारे बेटे ने भी ऐसा ही कुछ किया था, तो तुम अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकती हो। हाँ जी। मेरे बेटे ने जो अब तो वो बड़ा हो गया पर थोड़ा तब 4-5 साल का था। तो उसने मेरी कजन के सामने जो ओवरवेट थी पूछ लिया कि मम्मा वाई शी सो फैट। तो एट दैट टाइम इंस्टेड ऑफ सेइंग ऐसे मत बोलो या ये गंदी बात होती है, आई टोल्ड हिम विद रीजन कि आई नो यू डिडंट मीन टू हर्ट एनीवन, बट किसी को मोटे बोलने से उनको कई बार दुख हो सकता है। इट्स नॉट पोलाइट टू टॉक अबाउट पीपल्स बॉडीज। सब डिफरेंट दिखते हैं और वो ठीक है। व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट इज दैट दूसरा बंदा हेल्दी हो और हम खुद भी हेल्दी हो। एंड फॉर दैट वन नीड्स टू ईट हेल्दी एंड वर्क आउट रेगुलरली।
क्योंकि मैं भी ओवरवेट हूँ, तो मैंने उसको बोला, देखो मम्मी भी तो ट्राई कर रही है ना हेल्दी खाना खाने की, ठीक से सोने की, वर्कआउट करने की, और इसीलिए मम्मा आपको भी बोलती हैं कि आप भी हेल्दी खाओ, टाइम पे सो, और खेलने भी जरूर जाओ। मैंने अपनी कजन को भी सिंपली यही बोल दिया कि वो ये अभी बहुत छोटा है, आई एम सॉरी, वो अभी भी सीख रहा है, एंड आई विल डेफिनेटली टॉक टू हिम अबाउट इट। ऑल्सो मेरे साथ ये भी हुआ एक बारी कि रात को मेरा बेटा बहुत मेरे से बात करने में इंटरेस्टेड होता है, तो इरिटेशन तो मुझे भी हो रही होती है जैसे और मम्मियों को हो रही होती है कि नींद आ रही है, या दिन में भी जब उन्हें बहुत बात करनी होती है। बट मैं कॉन्शियसली एफर्ट मार के उसको ऐसे नहीं बोलती कि बहुत बोल रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कोई बात नहीं, थोड़े साल और है जब ये मेरे से बात करना चाहता है तो मैं इसकी पूरी बात सुन लूं, और ये किसी और से पूछे, कुछ और जवाब इसको मिले, इससे अच्छा मैं ही इसको ऑथेंटिक आंसर्स दूं। एक और बात जो मेरे साथ भी हुई और मैंने अप्लाई करी, वो थी कि हम टीवी देख रहे थे और उसके मुंह से कुछ देखते हुए एक गाली निकल गई, अब्यूजिव वर्ड जो मुझे याद भी नहीं है, बट आई वाज मुझे बस हंसी आ गई, है ना, आज दिन कि आपने ये क्या बोला। तो एक बार तो वो सहम गया, पर फिर उसने मुझे बता भी दिया। इससे बस मैं ये बताना चाहती हूँ कि गाली देना भी नॉर्मल बात है, इससे वो कोई गलत बच्चा या गंदा बच्चा नहीं हो गया। आई उनको भी पता होता है टीचर्स के सामने देंगे तो डांट पड़ेगी, और बड़ों को देंगे तो भी डांट पड़ेगी, तो इट्स जस्ट अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स। बाकी अब टाइम काफी होता जा रहा है, तो मैं इस वेबिनार को खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। वी ट्रूली अप्रिशिएट द टाइम एंड प्रेजेंस ऑफ ईच वन ऑफ यू। If you found this session helpful and thought provoking, and if you have more questions or would like to continue exploring these themes, we warmly invite you to join our free online group mental health sessions held every Thursday from 4 to 4:40 p.m. on Zoom at Indian Standard Time. In addition, we also offer weekend group therapy sessions for those who need more personalized support. We provide individual and family therapy sessions as well. You can find all these details on our official website, shritara.com. Or you can simply WhatsApp us on the Shritara helpline number, and we are always here to guide and support you. The helpline number हमारे description box में भी है. We will try and organize another webinar on 24th July, which is International Self-Care Day. So you can send us all your mental health concerns and we will try to address as many as possible. Looking forward to seeing you all on 24th July. Once again, thank you so much for giving us your valuable time. We hope you found this session meaningful and worth your while. आप ये रिकॉर्डिंग और लोगों को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं जिन जो आपको लगता है बेनिफिट करेंगे इससे। थैंक यू सो मच।